So now, hello everyone. Today we are going to start exercise 4.4. Yes, ready for the exercise? So the first question of the exercise is find the nature of roots of the following quadratic equations. If the real roots exist, you have to find them. Yes. अब इसमें क्या है? We need to find the nature of roots. मतलब इसमें जो आपका wholly and solely जो depend करती है ये पूरी exercise, that will be on the discriminant. क्योंकि जो nature of roots हैं वो आपको सिर्फ discriminant बताता है. हमने इसके एग्जाम्पल्स में लास्ट क्लास में जो हमने वीडियो पोस्ट की थी उसमें यही बताया था कि जो डी है बेटा वो तीन तरह से आता है. किस तरह से उसकी वैल्यूज आती हैं? एक, या तो वो इक्वल टू 0 होगा, ग्रेटर देन 0 होगा, या फिर लेस देन 0 होगा. व्हेन इट इज ग्रेटर देन 0 तब इसका मतलब क्या है? रियल रूट्स हैं. इफ इट इज इक्वल टू 0 रियल रूट्स हैं बट वो इक्वल है. ठीक है, लेकिन जब ग्रेटर देन 0 में है तब रियल रूट्स हैं बट इक्वल नहीं होती है. जरूरी नहीं है इक्वल हो. अगर मेरा d की वैल्यू, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0, मतलब नेगेटिव में आ रही है, दैट मीन्स वहां पे अनरियल रूट्स हैं. रियल में वो रूट्स एग्जिस्ट ही नहीं करते. तो उस केस में हमें उसका आगे फॉलो अप नहीं देना है. मतलब वी डोंट नीड टू further calculate our equation, but in case if our d comes out to be equal to 0 or greater than 0, then we have to find out the solution. Okay beta, now the first equation is 2x square minus 3x plus 5 is equal to 0. First of all Tanisha, tell me हमारा जो d की वैल्यू थी वो क्या है? d का फॉर्मूला क्या था बेटा? d का? हाँ जी, d, कैपिटल d. Capital b square minus 4ac. Yes, capital D is equal to b square minus 4ac. अब दीपांशु बेटा ये जो पिंक में मैंने इक्वेशन मार्क की है, कैन यू टेल मी व्हाट इज a, व्हाट इज b एंड व्हाट इज c इन दिस इक्वेशन? a is plus 2. Yes. And b minus 3 and c Yes. plus 5. Yes. So now put on the values in the formula for d and calculate d. So in place of b we will be putting minus 3. Yes. यहाँ पे हमने इस वैल्यू को पुट किया, a की जगह हमने 2 पुट किया और c की जगह we are using 5. So I am getting d is equal to minus 31. अब what do you think? ये जो 31 है, is it greater than 0 or less than 0? It is less than 0. Yes. So less than 0 मतलब कि the real roots don't exist, unreal roots are there. So we need not calculate this further. Yes. Now the second part beta. In second part the equation given is 3x square minus 4 root 3x plus 4 is equal to 0. Now Tanisha, tell me beta what is a, b and c in this equation beta? a, b and c. Yes beta. A is a is 3. Yes beta. A is equal to b is minus 4 root 3. Yes. And c is? And c is equal to 4. Yes. Dipanshu, what is the formula for calculating discriminant, which is your capital D? मैम आप प्लीज बोलना. What is the formula for calculating D, discriminant? आप स्क्रीन देख पा रहे हो? d equals to b square minus 4ac. Yes. So when you have put the values, तो आपको b की जगह पे in place of b we will write minus 4 root 3 का whole square. In place of a we will write 3 and in place of c we will write 4. So we are getting our d equal to 0. तनीषा, जब d की वैल्यू 0 आ गई बेटा उसका क्या मतलब है? The equation will have dash roots. कैसी roots होंगी उसकी? Real and equal. Yes, the roots will be real and equal. जब भी ऐसा होता है ना बेटा, तब आपने आंख बंद करके क्या लिख देना है? माइनस बी बाय रूट ए माइनस बी बाय 2 रूट, सॉरी माइनस बी बाय 2 ए. अब क्यों मैंने लिखा? क्योंकि अंडर रूट 0 है, तो आप उसको प्लस करोगे तब भी वही आएगा, माइनस करोगे तब भी वही आएगा. ओके, तो दोनों केस में आपकी रूट की वैल्यूज क्या बन जाती है? माइनस बी बाय 2 ए. यस, तो आपका आंसर जो क्या आ रहा है, हमारा b की वैल्यू क्या है बेटा? माइनस 4 रूट 3, तो वो प्लस 4 रूट 3 बन जाएगा डिवाइडेड बाय 6. तो उसकी जब हमने रिडक्शन कर दी, सो वी आर गेटिंग 2/3 रूट 3 एंड 2/3 रूट 3. यस, क्लियर बेटा? दीपांशु क्लियर है बेटे? ओके.
Now the third equation. Yes. Okay, first of all, equation is 2x square minus 6x plus 3 is equal to 0. So, Tanisha beta, what is A, B and C in this? A is, yes beta, what is A, B, C? A is 2, B is Yes, minus 6, and C is plus 3. yes. Dipanshu, what is the formula for calculating D? Calculating D, capital D, it is B square minus, yes beta, capital D is equal to B square minus 4AC. So in place of B, we will be writing minus 6. In place of A, we will be writing 2. And in place of C, we will be writing 3. So when you have solved this thing, you are getting D is equal to 12, which means D is greater than 0. Tanisha beta, agar greater than 0 hai, the nature of roots will be Real. रियल यस सो नाउ इसका मतलब क्या है कि या तो हमारा जो x होगा इट विल बी माइनस बी प्लस रूट डी अपॉन 2a या फिर x इज इक्वल टू माइनस बी माइनस रूट डी बाय 2a. यस नाउ विल यू कैलकुलेट द वैल्यूज एंड शो मी द आंसर. यस बेटा. हाँ जी हो गया सॉल्व बेटा. तो यहाँ पे जब आप वैल्यूज पुट कर रहे हैं यू आर गेटिंग x इज इक्वल टू 6 प्लस 2 रूट 3 बाय 4 या फिर 6 माइनस 2 रूट 3 बाय 4. तो हम इसमें से 2 जो है न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से कॉमन ले लेते हैं. सो वी आर गेटिंग x इज इक्वल टू 3 प्लस रूट 3 बाय 2 और x इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 3 माइनस रूट 3 बाय 2. यस क्लियर बेटा. Yes, ma'am. Okay, chalo. Now move on to the next question. Now find the values of k for each of the following quadratic equations so that they have two equal roots. Tanisha, tell me in which condition do we have equal roots, beta? Equal roots kis And then D condition? is equal to 0. Yes, very good. When d is equal to 0. Very good. 0. So that means अब देखो बेटा first जो equation है ना हमारी वो है 2x square plus kx plus 3 is equal to 0. Now Dipanshu will tell me beta what is a, b and c in this equation. Dipanshu beta what is a? Ma'am, A is 2 plus 2 Yes. and B is plus Yes. X Plus and k. C is plus 3 It is plus k K. not x. ठीक है. Yes, And ma'am. हाँ वो मुझे पता है मेरी handwriting ऐसी आई हुई है इसीलिए. Now Tanisha has already And told me that ma'am d जब it is equal to 0 that only then two equal roots की जो condition है वो exist करती है. तो इसका मतलब d is equal to 0. Now Dipanshu will tell me कि real में d का formula क्या होता है? What is d? A B square minus 4AC is equals to Yes. 0. तो ये आ जाएगा आपका बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0. या हम ये कह सकते B हैं अगर square. हम इस 4ac को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट कर देते हैं तो माइनस साइन विल गेट कन्वर्टेड इनटू पॉजिटिव साइन. सो इट विल बी b स्क्वायर इज इक्वल टू 4ac. नाउ पुट द वैल्यूज एंड फाइंड आउट द आंसर. b की जगह व्हाट यू विल राइट k. in place of a you will write 2 and in place of c you will write 3. Now Tanisha find out the values beta. So beta, after putting the values, what you got k square is equal to 24. So obviously you need to find out the value of k. So हम RHS side में जो आएगा value उसका हम square root निकाल देते हैं. So square root निकालने के बाद what we are getting k is equal to plus minus 2 root 6. So this is the value of k. Now the second part, kx into x minus 2 plus 6 is equal to 0. Okay बेटा, ये आपकी equation है. But this equation is not our familiar form. So first of मैम all, कौन सा क्वेश्चन करवा रहे हो? बेटा जी सेकंड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है. ठीक है. अब इस कौन सी एक्सरसाइज है? बेटा 4.4. हाँ जी. अब है बेटा देखो हमें सबसे पहले इसको एक जो हमारी फेमिलियर क्वाड्रेटिक फॉर्म है हमें सबसे पहले उसमें रिड्यूस करना पड़ेगा. सो हाउ विल वी डू? वी विल मल्टीप्लाई दिस kx with x minus 2. So you are getting kx square minus 2kx plus 6 is equal to 0.
Now Dipanshu beta, you tell me what is A, what is B, what is C in this. मैम ए है के, बी है -2, सी है +6. Yes, very good. Tanisha, D is equal to 0. Yes. Yes, ma'am. हाँ जी, तो इसका मतलब b square minus 4ac is equal to 0, और I can say b square is equal to 4ac. Yes. Now can you find out the value of k by putting the given values? आप b square की जगह what you will write? You will write minus 2k, so it will become 4k square. And in place of a you will write k, and in place of c you will write 6. So you can calculate. Yes, everybody. देखो बेटा, जब आपने यहाँ पे पुट की, so obviously we will be getting minus 2k whole square is equal to 4 into k into 6. Okay, so in the next thing what is going to happen, it is like squaring है तो minus sign तो plus में चला गया, so it is 4k square is equal to 6k. Now this 4 and this 4 they are common, so they will be wiped off. Now k square upon k, so obviously this is also going to wipe off, so our k comes out to be equal to, yes, clear beta? चलो अब एक बार दोबारा से समझाना मैम. बेटा आप इसमें वैल्यूज पुट करो, आप जब इसकी कटिंग करोगे ना यू विल बी लेफ्ट विद ओनली के, क्योंकि जो अगर ये डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में आ गया तो ये कैंसिल आउट हो जाता है. -2k का होल स्क्वायर क्या बनेगा? 4k स्क्वायर. 4 into k into 6, इसको आप सॉल्व मत करो क्योंकि ये जो 4 है दोनों साइड पे है तो इट विल बी स्ट्रक ऑफ. ठीक है, ये वाला 4 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आई एम लेफ्ट विद k स्क्वायर इज इक्वल टू 6k. k स्क्वायर मतलब k into k, एक k और स्ट्रक ऑफ हो गया, so k is left out to be equal to 6. ठीक है जी, चलो भाई अब we will move on to our एक सेकेंड, ये शीट आई थिंक रिपीट हुई है. यस, थर्ड क्वेश्चन. थर्ड क्वेश्चन क्या कह रहा है? Is it possible to design a rectangular mango grove whose length is twice its breadth and the area is 800 meters square? If so, find its length and breadth. देखो बेटा, वो हमें ये कह रहा है कि we have to find out कि एक क्या हम rectangular field हम बना सकते हैं जिसकी जो length है it is twice that of breadth, और area जो है that should be 800 meters square. अगर ऐसा possible है तो आप उसकी लेंथ और ब्रेड कैलकुलेट करेंगे. अब तनीषा टेल मी वन थिंग, अगर उन्होंने हमसे ये पूछा है कि इज इट पॉसिबल, तो इनका क्या हिंट है जो आप समझ पा रहे हो? व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट? यस बेटा. यस बेटा. शीतल, आपको समझ आया बेटा कि इन्होंने हमसे ये क्यों पूछा कि इज इट पॉसिबल? यस बेटा. दीपांशु. यस मैम. बेटा इन्होंने हमसे पूछा है इज इट पॉसिबल. व्हाई दे हैव आस्क्ड अस कि क्या ये पॉसिबिलिटी है या नहीं? व्हाई? मतलब हमें ये क्या हिंट दे रहे हैं कि आप पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, फिर उसको सॉल्व करो, फिर आगे वो सॉल्व नहीं होएगा, फिर हम कहेंगे कि भाई ये तो सॉल्व नहीं हो सकता, तो दैट विल बी वेस्टेज ऑफ टाइम, राइट? तो हम क्या करेंगे? हम इसको लेंथ एंड ब्रेड्थ पे ले लेंगे, एंगल निकाल लेंगे, कर लेंगे. ठीक है जी, ओके फाइन, क्योंकि ये एरिया गिवन है, तो अगर तो हमारी वैल्यू जो है वो आपकी विदाउट फ्रैक्शन या विदाउट एनी नेगेटिव साइन आ रही है तो ये पॉसिबल है. नहीं तो नहीं पॉसिबल है. जैसे अब उसने बोला ट्वाइस ऑफ इट्स ब्रेड्थ, तो हम सबसे पहले ब्रेड्थ को क्या मान लेंगे? x, तो लेंथ ऑटोमेटिकली क्या हो गई? 2x. एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ रेक्टेंगल? दिस विल शीतल विल टेल. यस शीतल बेटा, what is the formula for calculating area of rectangle? Length into breadth. Yes, length into breadth. So area of rectangle comes out to be equal to L into B. Now area is already given to us. It is 800 into is equal to 2x into x. So that becomes equal to x square. और हम यहाँ पे 2 को denominator side पे ले गए. So it becomes 400 is equal to x square. Now Tanisha beta, is 400 a perfect square? Yes, ma'am. Yes. किसका perfect square है बेटा? 20.
20 का। 20 का। तो इसका मतलब ब्रेड्थ जो है वो क्या आ गई 20 और लेंथ क्या आ गई 40. सो दैट मीन्स इट इज पॉसिबल. So breadth is coming out to be 20 centimeter and length is coming out to be 40. Yes, clear beta? Now, the next question. Now, is the following situation possible? If so, you have to determine the present ages. The sum of the ages of two friends is 20 years. ठीक है बेटा, दो फ्रेंड्स हैं, उनकी ना एजेस का जो सम है वो 20 years है और 4 years ago the product of their ages in years was 40 years. Yes, वो 48. ओके बेटा. अब देखो, सबसे पहली बात तो हमें पता ही नहीं है दोनों फ्रेंड्स की एज क्या है. तो हमने सबसे पहले क्या चीज अज्यूम करनी है कि हम एक फ्रेंड की एज मान लेते हैं. अगर हमने एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड जो है वो x years मान लिया तो दूसरे फ्रेंड की एज जो है वो 20 - x हो जाएगी. क्यों हो जाएगी? बिकॉज उनकी एजेस का जो सम है वो 20 दिया गया है. तो अगर एक का x है तो दूसरे का क्या होगा बेटा? हम सम में से उसकी एज को माइनस कर देंगे. यस. अब 4 years ago मतलब शीतल, अगो मतलब हम माइनस करेंगे प्लस करेंगे? माइनस. माइनस. सो एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड क्या हो जाएगी बेटा? इट विल बी x minus 4. x माइनस. यस. और एज ऑफ सेकंड फ्रेंड क्या हो जाएगी बेटा? 20 - x minus 4 मतलब 16 - 4. अब ये कह रहा है दोनों का जो प्रोडक्ट था जब 4 years पहले उनकी एज थी, दैट इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 48. यस, वो 48 के इक्वल आ गया. तो अब मुझे आप लोग फटाफट से इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फ्रेम करके बताना है. सिर्फ जस्ट फ्रेम द क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस, इसको मल्टीप्लाई करके दोनों ब्रैकेट्स को, देन लेट मी नो व्हाट इज कमिंग आउट टू बी योर क्वाड्रेटिक इक्वेशन. यस, सो द इक्वेशन फ्रेम्ड विल बी, आपको जो ये मल्टीप्लाई करके यू आर गेटिंग जो x minus 4 into 16 minus x is equal to 48. Okay, so this x will be multiplied with 16 minus x. This minus 4 will also get multiplied with 16 minus x. Okay, so that means जब आप इनको मल्टीप्लाई करने के बाद इनकी लाइक टर्म्स को ऐड या सब्ट्रैक्ट कर लेते हो, so in the end you are getting x square minus 12x plus 112 is equal to 0. अब बेटा देखो, जब हमने पॉसिबिलिटी देखनी है, अब इसमें we are able to see कि it's a quadratic equation. Yes, ठीक है. तो पॉसिबिलिटी देखने के लिए हमारे पास क्या है कि हम d को कैलकुलेट कर लें. जब आप डिस्क्रिमिनेंट को कैलकुलेट करते हो, एक स्टेप क्लियर हो जाता है कि वेदर d इज कमिंग आउट टू बी इक्वल टू 0 और ग्रेटर देन 0. यस, अगर वो चीज इक्वल टू 0 या ग्रेटर देन 0 आती है d की वैल्यू, only then we will proceed into our question. Otherwise there is no need, क्योंकि उस टाइम पे पॉसिबिलिटी नहीं रहेगी. अगर वो d की वैल्यू हमारी लेस देन 0 चली जाती है, दैट मीन्स वो अनरियल रूट्स हैं. अनरियल रूट्स होने का क्या मतलब है बेटा? कि वहां पे ये कंडीशन पॉसिबल है ही नहीं. तो हम सबसे पहले क्या कैलकुलेट करेंगे? वी विल फाइंड आउट a जो है हमारा +1 है, b हमारा -12 है, c जो है इट इज +112. सो नाउ वी आर गोइंग टू कैलकुलेट d. ठीक है, हम इसमें चाहे तो पूरा x का फॉर्मूला निकाल के कर सकते हैं, लेकिन ऑब्वियसली हम सबसे पहले d की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे. एज वी नो d होता क्या है? b² - 4ac. सो आफ्टर पुटिंग द गिवन वैल्यूज I am getting 144 minus 448. So I am getting -304. तो इसका क्या मतलब हुआ बेटा कि जो d है that is less than 0. तो इस इक्वेशन का कोई रियल रूट तो हो ही नहीं सकता. So that means this situation is impossible. ऐसी कोई सिचुएशन नहीं हो सकती जिसमें दो फ्रेंड्स की एज का सम 20 हो, 4 years पहले उनकी एज का जो प्रोडक्ट है वो 48 है. यस, क्लियर है बेटा? मैम एक बार दोबारा समझा दो. बेटा इसमें आपने क्या करना है बेटे, जब हमने इक्वेशन फ्रेम कर ली ना, आप d की वैल्यू निकाल लो. ठीक है, अगर d की वैल्यू हमारी ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 आ रही है तो आप उसको आगे सॉल्व करो, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है. ठीक है बेटा, नहीं तो देयर इज नो नीड. ओके, क्लियर बेटा? यस मैम. हाँ जी. अगर लेस देन 0 है तो हम स्ट्रेट अवे लिख देंगे कि हमारी तो सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास तो फैक्ट है कि d जो है दैट इज कमिंग आउट टू बी लेस देन 0 और नेगेटिव नंबर का कभी भी स्क्वायर रूट नहीं होता. यस, चलो अब हम करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट है बेटा, इज इट पॉसिबल
to design a rectangular park of perimeter 80 meters and area 400 meters square. If so, find its length and breadth. ठीक है जी, अब फिर वही चीज है, पॉसिबिलिटी बतानी है तो हम क्या करेंगे, हमें लेंथ ब्रेथ तो पता नहीं है, सो फर्स्ट स्टेप विल बी हम अज्यूम कर लेते हैं, क्योंकि अब इन्होंने ना हमें लेंथ और ब्रेथ का कोई रिलेशन नहीं दिया है, तो मैंने यहाँ पे अभी इस टाइम पे दो वेरिएबल्स ले लिए हैं, x I have assumed it to be the length and y to be the breadth. अब मुझे गिवन क्या है बेटा, आई एम गिवन द पेरीमीटर, सो पेरीमीटर का क्या फॉर्मूला होता है रेक्टेंगल के, दीपांशु व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल? यस बेटा, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इट इज 2 हाँ जी ट्वाइस ब्रैकेट L plus B. यस, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस L प्लस B. तो जब आप यहाँ पे वैल्यूज पुट करते हो तो आपको क्या मिल गया, x प्लस वाई इज इक्वल टू 40. ओके, हम x को y के टर्म्स में ले जाते हैं, तो x बिकम्स इक्वल टू 40 माइनस y. ओके जी, अब एरिया क्या होता है, एरिया इज लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उन्होंने हमें एरिया भी गिवन है, एरिया इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर, तो यहाँ पे हमने वैल्यू लिख दी कि 400 इज इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ, मतलब x इनटू y. अब हम क्या करेंगे बेटा, ये जो x की वैल्यू है यहाँ पे इस वैल्यू को हम यहाँ पुट कर देंगे, ठीक है, ताकि हमारा जो y है वो इरेडिकेट हो जाए, है ना, y खत्म हो जाएगा. तो जब आपका ये y की वैल्यू आ गई, देखो अब कैसे आई है बेटा, ये आ गया 40 माइनस वाई इंटू वाई इज इक्वल टू 400. यस, आप इसको सॉल्व करोगे तो ये इक्वेशन बन जाती है माइनस वाई स्क्वायर प्लस 40y माइनस 400 इज इक्वल टू 0. I have taken minus sign as common, so I am getting y square minus 40y plus 400. Again you have to calculate d. पहले पूरा क्वेश्चन मत करो, पर पहले हम क्या करते हैं, इसको क्या कर लेंगे बेटा जी, हम d वैल्यू जो है वो कैलकुलेट करके दिखा देंगे. So what I am getting, मेरे पास यहाँ पे d की वैल्यू जो है वो 0 के बराबर आ गई. 0 की वैल्यू आते ही इसका क्या मतलब है कि इसके पास 2 इक्वल रूट्स होंगे. So that means जो x है that is equal to minus b by 2a minus b by 2a. That means length भी 20 है और breadth भी 20 है. ऐसे रेक्टेंगल को क्या बोलते हैं बेटा, Square. हाँ जी स्क्वायर, जिसमें सारी साइड्स इक्वल हो, दैट इज स्क्वायर. तो यस इट इज पॉसिबल. ओके जी, so with this we finish off your exercise 4.4.